Assalamu alaikum dear students. I am your biology teacher Madiha Zara and I am here to discuss the last topic of chapter number 4, the difference between prokaryotic and eukaryotic cells. जैसे कि बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा था सेल और हमने डिस्कस किया था that there are two different kinds of cell. One is prokaryotic and the other one is eukaryotic. वैसे हम कंपैरिजन में बेटा सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मोस्टली डिफरेंसेस को देखेंगे. चले हम देखते हैं कि हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है. बेटा प्रोकैरियोटिक सेल, हम अगर प्रोकैरियोटिक सेल को डिफाइन करें तो प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता. जब डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है तो देयर विल बी नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस. इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल तो ये एक ऐसा सेल है जिसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस. A type of cell which have no definite nucleus and lack membrane bounded organelles, while the eukaryotic cell is a type of cell which have definite nucleus and membrane bounded organelles. आगे हम देखें बेटा organisms which are made up of prokaryotic cells are called as prokaryotes, while the organisms which are made up of eukaryotic cells are eukaryotes. आगे बेटा अगर हम देखें according to the origin of life there are two concepts. One is Islamic and the other one is organic evolution. As a Muslim बेटा we are the believers of Islamic concept. लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें तो बेटा जो सबसे पहले ओरिजिन हुआ था ऑर्गेनिज्म का लाइफ पे तो बेटा वो एक बैक्टीरिया था एंड वी नो दैट बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट. तो बेटा प्रोकैरियोट्स आर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स व्हाइल द यूकैरियोट्स आर द एडवांस्ड टाइप ऑफ सेल्स. फिर बेटा अगर हम इनके साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स रेंजेस फ्रॉम 0.1 to 5 माइक्रोमीटर व्हाइल द यूकैरियोटिक सेल रेंजेस फ्रॉम 10 to 100 माइक्रोमीटर. आगे बेटा जैसे मैंने डेफिनेशन में आपको बताया है देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस means a true nucleus which is bounded by a membrane is absent in prokaryotes, while the well-defined nucleus is present in eukaryotes means the nucleus is surrounded or enclosed by a double membrane. While in prokaryotes when there is no nuclear membrane the genetic material is directly submerged in the cytoplasm, while in eukaryotes the nuclear membrane is present and the genetic material is enclosed by a double membrane. While in prokaryotic cell there are no membrane bounded organelles, while the eukaryotic cells have membrane bounded organelles as we discussed Golgi apparatus, endoplasmic reticulum. The next point is the ribosomes. As we know that ribosomes have the same structure and chemical composition both in prokaryotic cell and eukaryotic cell, but the main difference in eukaryotes and prokaryotes is the size of ribosomes. In prokaryotic cells small size ribosomes 70S. S as the Swedberg unit which is the unit of sedimentation, while in eukaryotic cells large size ribosomes 80S are present. The next one is cell wall. As we discussed beta that prokaryotes and eukaryotes both have cell wall and the composition the main constituent which is common in both is carbohydrate. The cell wall of prokaryotic cells are made up of peptidoglycan. बेटा जैसे कि peptidoglycan that is the conjugated molecule and you know that conjugated molecule क्या होता है. बेटा conjugated molecule में two different molecules which belong to different classes join together to form a conjugated molecule. और यहाँ जैसे नेम से पता चल रहा है पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडो पेप्टाइड एंड ग्लाइकेन ग्लाइकेन चेन्स. बेटा पेप्टाइडोग्लाइकेन ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें लॉन्ग ग्लाइकेन चेन्स हैं जो बाउंड हुई हैं कोवलेंटली विद द शॉर्ट अमाइनो एसिड चेन्स और इन दोनों ने मिलकर बनाया है पेप्टाइडोग्लाइकेन. अब बेटा जो प्रोकैरियोट सेल्स हैं उनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन मॉलिक्यूल को एक ह्यूज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाता है और इसको कॉमनली कहा जाता है सेकुलस. द यूकैरियोटिक सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड प्लांट्स व्हाइल इन फंजाई इट इज मेड अप ऑफ काइटिन. द नेक्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन.
बेटा जो यूकेरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन है उनमें है कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। लिपिड्स हमने आगे डिस्कस किया था, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लिपिड्स, वन इज फॉस्फोलिपिड एंड द अदर वन इज कोलेस्ट्रॉल। While the cell membrane of prokaryotic cell have no cholesterol, while the cell membrane of eukaryotic cell have cholesterol. The next one is mitosis and meiosis. बेटा जो न्यू सेल्स होते हैं वो हमेशा बनते हैं जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं बाय प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल डिवीजन. Mitosis and meiosis are absent in prokaryotic cell and the prokaryotic cell divides by binary fin. अब आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी फिन क्या है. बेटा ये एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है जिसमें एक सेल डिवाइड करता है इनटू टू इक्वल और नियरली इक्वल सेल्स, while the mitosis and meiosis are present in eukaryotic cells. Okay, the last one is example of prokaryotes and eukaryotes. As we know that bacteria and cyanobacteria are the examples of prokaryotic cells, while plants, animals, fungi and protists are the example of eukaryotic cells. बेटा अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 5 एंड वेराइटी ऑफ लाइफ. अब देखते हैं बेटा कि इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे. बेटा सबसे पहले तो डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी की कि बायोडाइवर्सिटी क्या है. जैसे आपको पता है बायो लाइफ, डाइवर्सिटी डाइवर्स होना. अब इसमें बेटा इसका है द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अब जैसे कि बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था कि अभी तक टोटल जो स्पीशीज हमें पता चली हैं दैट इज 2.5 मिलियन. अब हम देखते हैं कि 2.5 मिलियन स्पीशीज में कितने प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं और कितने बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटिस्ट वगैरह हैं. बेटा 1.5 million species of animals and 500,000 million species of plants are known and the remaining ones are bacteria, fungi and protist. अब बेटा इतनी ज़्यादा स्पीशीज हमें पता चली हैं. अब इनको क्लासीफाई करने के लिए हमें कोई ना कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम चाहिए क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं कि इतनी ज़्यादा स्पीशीज को हम स्टडी कर सकें. तो इतनी ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ डिसिमिलर फॉर्म्स के लिए हमें कोई ना कोई क्लासिफिकेशन का सिस्टम चाहिए. सो वी नीड अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज क्लासिफिकेशन. बेटा क्लासिफिकेशन है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. अब बेटा क्लासिफिकेशन के बहुत ज्यादा सिस्टम है. अगर हम एक की एग्जाम्पल लें फ्लावरिंग प्लांट. अगर हम फ्लावरिंग प्लांट को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, अकॉर्डिंग टू देयर कलर या किसी और कैरेक्टर के बेस पे, तो बेटा ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है ये हमें कोई भी अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल भी नहीं है. इसका मतलब है कि हमें कोई और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो एडवांस हो, जो हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, उनकी ज़रूरत है. So the next one is basis of classification. The first page is evolutionary history. अब बेटा देखें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो आपस में रिलेट करते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे, तो बेटा उनको हम स्टडी कर सकते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज को, उनके डिफरेंसेस को अकॉर्डिंग टू देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. द नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स. जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में बेटा इसकी डेफिनेशन पढ़ी है दैट जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स and their transfer from one generation to another generation. तो बेटा इससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है about species. The next one is cytology, the study of cell and their type of cell. जैसे कि हमने डिस्कस किया है अभी that there are two kinds of cell. One is prokaryotic and the other one is eukaryotic. The next one is comparative biochemistry. बेटा जैसे कि बायोकेमिस्ट्री का हम बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं. हमने देखना है कि कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से ये स्पीशीज बनी हैं. और जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 1 पे एक टेबल पढ़ा था द एनालिसिस बिटवीन मैमेलियन सेल एंड बैक्टीरियल सेल एंड यू नो दैट द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम इन बोथ, ओनली द परसेंटेज इन डिफरेंट इन बैक्टीरियल एंड मैमेलियन. बेटा द नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. अब बेटा जब हम लार्जर ग्रुप्स को स्मॉलर ग्रुप्स में करते हैं मतलब अप टू स्पीशी लेवल, तो बेटा द फर्स्ट यूनिट इज किंगडम, द अदर वन इज डिवीजन
Third one is class. The next one order, family, genus and species. अब बेटा हम जब एक लार्जर ग्रुप को सब ग्रुप में कर रहे हैं और आगे जैसे मैंने मेंशन किया है अप टू स्पीशीज लेवल, वी शुड नो दैट व्हाट इज स्पीशीज. बेटा अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स and they produce fertile offsprings but are reproductively isolated from all others in nature. अब बेटा इसका क्या मतलब है? That they are reproductively isolated from all other such groups in nature. बेटा जब भी मेटिंग करनी है तो अपने ही स्पीशी के दूसरे मेट से वो मेटिंग करेंगे. ऐसा नहीं कि अगर वो किसी और से मेट करेंगे तो बेटा जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो रिप्रोडक्टिव नहीं होंगे बल्कि स्टेराइल होंगे. आगे बेटा हमने जैसे डिस्कस किया है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. आफ्टर दैट डिवीजन, बेटा हम डिवीजन यूज करते हैं प्लांट्स के लिए. जब प्लांट्स को डिवाइड किया जाता है टू डिवीजन्स में, वन इज ब्रायोफाइटा एंड द अदर वन इज ट्रैकियोफाइटा. बेटा ब्रायोफाइटा को हम कहते हैं दीज आर नॉन वस्कुलर प्लांट्स, वेल ट्रैकियोफाइटा आर दी वस्कुलर प्लांट्स. और जैसे कि हमें पता है कि नॉन वस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा और वस्कुलर प्लांट्स आर दोज विच हैव जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज. अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लें बेटा कॉर्न की, that the scientific name of corn is Z maize. अब हम इसको देखते हैं कि इसके यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है. बेटा इट्स किंगडम इज प्लांटिंग, इट्स डिवीजन इज ट्रैकियोफाइटा, its class is Angiospermae. Angiospermae are commonly called as flowering plants. Its order is Poaceae, family is Poaceae, while its genus is Z and its species is maize. This is all about the classification of corn.